Last lecture we had finished with the limitations of the law of diminishing marginal utility. Today we are going to study about the importance of the law of diminishing marginal utility. अभी why to study this law? अभी ये law हमको किस तरह से यूजफुल है? First we can see that this law is important to the finance minister. ये लॉ किसको इम्पोर्टेंट है? फाइनेंस मिनिस्टर को. तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर को किस लिए ये इम्पोर्टेंट है? टू डिटरमाइन द टैक्स पॉलिसी. अभी वो कैसे? फ्रॉम दिस लॉ or from this law of diminishing marginal utility, the minister, he will come to know that the rich people, those who are having more stock of money, they are having a lesser utility of money, and therefore they will get less burden if they are taxed more. Therefore, when the government charge higher tax on the rich people, they will be ready to pay. Whereas the poor people, since they are having a more marginal utility of money, if the government charge higher tax on these people, they will suffer a lot. Therefore, what the government will do? Finance minister will charge lesser tax on poor people. Second, it is important to the government to determine the welfare policy for the poor. अभी गवर्नमेंट कई सारे वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर पॉलिसीज पुअर पीपल के लिए इंट्रोड्यूस करता है. जैसे now the government is providing the free housing to the poor people who are living in the slum areas. Then they are providing free food. अभी गवर्नमेंट इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन जो पुअर पीपल है, दे आर प्रोवाइडेड द फ्री फूड, फूड ग्रेन for the benefit of the poor people through the public distribution system. So to implement all these schemes for the benefit of a poor, this law is useful to the government. Next, this law is useful to understand the paradox value. हमको ये लॉ किस लिए यूजफुल होता है? टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स वैल्यू. नाउ व्हाट इज द पैराडॉक्स वैल्यू? दैट इज द कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज. कौन से कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज है? दैट इज वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू in exchange. Value in use and value in exchange. There is a conflict between these two concepts. Now, what is the value in use? Certain commodities, they are having more value in use, but lesser value in exchange. कुछ कमोडिटीज की यूज बहुत आता है, लेकिन उनकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत कम है. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द वाटर. हम लोग वाटर का एग्जांपल लेते हैं. वाटर हैज अ नंबर ऑफ यूजेस. पानी के कई सारे यूजेस है. जैसे इट कैन बी यूज फॉर बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग. यानी कि
Without water, we cannot survive also. Therefore, this water has more value in exchange, value in use. But since the water is available in a plenty, water का use ज़्यादा है, value in use ज़्यादा है, but value in exchange बहुत कम है. Why? Because water is available in a plenty, so उसकी exchange value कम है. अगर हम लोग ड्रिंकिंग वाटर, बिस्लरी वाटर भी अगर परचेस करेंगे तो इट विल हार्डली कॉस्ट 10 to 20 रुपीज. इतना यूज ज्यादा रहने के बाद भी उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज कम क्यों है? बिकॉज इट इज अवेलेबल इन अ plenty. लेट अस टेक द डायमंड. अभी हम लोग डायमंड के एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सी द पिक्चर ऑफ डायमंड ओवर हियर. डायमंड हैज more value in exchange but less value in use. डायमंड उसके बिल्कुल अपोजिट है. उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है लेकिन यूज वैल्यू कम है. इट्स नॉट यूजफुल टू अस एट ऑल इन डे टू डे लाइफ. डायमंड हम लोग किस लिए यूज कर सकते हैं? डे टू डे लाइफ में उसका कुछ भी यूज नहीं. In fact, it is useful only for making the show off. So therefore, we can say that it has a lesser value in exchange, value in use, but more value in exchange. लेकिन diamond is one of the precious stone. उसकी exchange value बहुत ज़्यादा है, use value very less. Now, why it has a more value in exchange? It's a scarce material. It's scarce stone. It is scarcely available. Since it is scarcely available, it has more value in exchange. So in this way, it is useful to us. This law is useful to us to understand this paradox between value in use and value in exchange. Now this law is also useful to the monopolist. तो ये मोनोपोलिस्ट को किस तरह से यूजफुल है? It is useful to the monopolist to determine the prices of the product. प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करने के लिए वो कैसे? From this law, the monopolist come to know that the rich people, they are having a more money, so lower marginal utility of money. And if they are charged more, they are ready to pay more. They will not get the burden. Whereas poor people, they are having a less amount of money, so more marginal utility. So what the monopolist will do in this case? He will charge lesser price from the poor. So in this way, to determine the price of the product, this law is useful to the monopolist. This law is also useful to the consumer. तो अब ये लॉ कंज्यूमर को कैसे यूजफुल है? It is useful to the consumer to maximize the satisfaction. Now, how the consumer will get the maximum satisfaction? Consumer will get a maximum satisfaction at a point when the marginal utility is equal to the price of that commodity. मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कभी मिलेगा अगर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस कैसे रहेगा? इक्वल रहेगा. That means what? The price which the consumer is willing to pay, which is equal to his marginal utility, should be equal to the price which he actually pays.
यानी कि कंज्यूमर जो देने की इच्छा है प्राइस और जो एक्चुअल पे कर रहा है वो अगर इक्वल रहेगी, then only the consumer will get the maximum satisfaction. अभी जैसे अगर आपको हमने वड़ा पाव परचेस किया और आपको 50 रुपीज इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो यू वोंट हेजिटेट इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ 50 रुपीज. अगर उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, then you won't pay the 50 rupees. This will do in a detail afterwards. Okay. Further, this law is useful to the producer. तो अभी प्रोड्यूसर को कैसे यूजफुल है? नाउ इट इज यूजफुल टू द प्रोड्यूसर टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अगेन यहाँ पे भी प्रोड्यूसर को ये लॉ प्राइस डिसाइड करने के लिए यूजफुल. जैसे अगर कोई प्रोड्यूसर के पास कमोडिटी का स्टॉक ज्यादा है, व्हाट ही विल डू? ही विल चार्ज लोअर प्राइस. इफ ही इज हैविंग अ लेसर स्टॉक, तो मार्केट में शॉर्टेज रहेगा. शॉर्टेज रहेगा तो यूटिलिटी ज्यादा रहेगी and the people will be ready to pay higher price, so he will charge the higher price for his product. So in this way, on the basis of the law, he can determine the price of his product. Now we'll see the relationship between the price and the marginal utility. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है. और अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कभी अटेंड करेगा? द कंज्यूमर विल अटेंड द इक्विलिब्रियम व्हेन, हमने कंडीशन अभी देखी थी, क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है is equal to the price of that commodity. That point, the consumer will get the maximum satisfaction. That means what? The price which the consumer is willing to pay is equal to the price which he actually pay for that commodity per unit of a commodity. अभी जैसे the price, अभी उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? The price which the consumer is willing to pay, वो किसके बराबर है? मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर. यानी कि जितनी यूटिलिटी मिलेगी, द कंज्यूमर विल बी रेडी टू पे द सेम अमाउंट ऑफ मनी. यानी कि जितना कंज्यूमर को यूटिलिटी मिल रहा है उतना पेमेंट कंज्यूमर विल बी रेडी टू पे, उतना अमाउंट कंज्यूमर रेडी रहेगा पे करने के लिए. तो अभी उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कन्वर्ट द मार्जिनल यूटिलिटी इनटू द प्राइस. अभी मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हमको प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन ओनली विल कम टू नो हाउ मच ही इज विलिंग टू पे एंड हाउ मच ही एक्चुअली पे. द अमाउंट विच ही एक्चुअली पे is equal to the price of commodity, that is the price per unit of a commodity, and the amount which he is willing to pay is equal to the marginal utility. अभी मार्जिनल यूटिलिटी को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि प्राइस पर यूटिलिटी कितना है? 10 रुपीज. यानी कि पर यूटिलिटी कंज्यूमर कितना विलिंग है पे करने के लिए? 10 रुपीज. अगर यानी कि उसको 1 यूनिट इतनी यूटिलिटी मिलेगी तो ही विल बी रेडी टू पे 10 रुपीज. अगर उसको 2 यूनिट्स इतना यूटिलिटी मिलेगा, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया? 20. ही विल बी रेडी टू पे 20 रुपीज. तो 20 रुपीज ही विल बी रेडी टू पे. अभी प्राइस कितना है पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी?
price per unit of a commodity is 50 रुपीज पर यूनिट प्राइस कितना है 50 रुपीज। तो अभी हम लोग देखेंगे कि टेबल दिस टेबल वी हैड ड्रॉन वी हैड टेकन द सेम एग्जांपल जो हमने पहले एग्जांपल लिए थे लॉ ऑफ डीएमयू के लिए। व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू? as we consume more and more units of the commodity marginal utility will goes on diminishing। यहाँ पे हमने देखा when consumer consume अभी कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? इज गेटिंग 10 यूनिट्स 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी। एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर को 10 इतना मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। बट एज ही कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स हिज मार्जिनल यूटिलिटी विल गोज ऑन डिमिनिशिंग। वो एक के बाद एक अगर कंज्यूम करता जाएगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो अभी व्हेन ही कंज्यूम द फर्स्ट यूनिट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 10 एंड हाउ मच प्राइस ही इज रेडी टू पे पर यूनिट 10। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आता है 100। यानी कि कंज्यूमर कितना रेडी है पे करने के लिए? 100 रुपीज इज रेडी टू पे फॉर 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी। लेकिन ही इज विलिंग टू पे 100 रुपीज, लेकिन प्राइस कितनी है? प्राइस तो 50 रुपीज है। दैट मीन्स व्हाट? कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना वो प्राइस पे करे। देन ही विल गो फॉर द सेकंड यूनिट। तो इसके लिए वो क्या करेगा? अगर उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो और एक यूनिट परचेज करेगा। फॉर सेकंड यूनिट जब वो सेकंड यूनिट कंज्यूम करेगा his marginal utility it will decrease to 8। तो अभी 8 यूटिलिटी के लिए वो कितना पेमेंट करने के लिए रेडी है? he will be ready to pay 80 rupees। that's the 10 multiplied by 8 he is ready to pay 80 rupees। but what is the price of the commodity? Price is 50 rupees। again here we can see that price which the consumer is willing to pay, that is 80 rupees, is more than the price which he actually pay। यानी कि उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है। so he is ready to pay more, but he is actually paying very lesser amount। so he will go for the one more unit। उसके लिए वो क्या करेगा? और कंज्यूम करेगा। but when he consume one more unit, अभी जब भी वो और एक यूनिट जब भी कंज्यूम करेगा his marginal utility it will decrease again। उसका marginal utility और कम होगा। कितना? 7। it will decrease from 8 to 7। so for 7 utility how much he will be ready to pay? He will be ready to pay 70। that is a 10 multiplied by 7 and actually he pays 50 rupees। again the satisfaction which the consumer derives is more than the amount which he actually pays। so therefore he will go for one more unit and when he consumes the fourth unit इसकी marginal utility it will again decrease। अभी कितना डिक्रीज हुआ? it decreases to 5
For 5 marginal utility, consumer is ready to pay 50 rupees. That is a 10 multiplied by 5. लेकिन प्राइस कितना है 50. कंज्यूमर कितना रेडी है पे करने के लिए 50. प्राइस कितना है 50. So here at this point we can see that marginal utility which the consumer derives is equal to the price. यानी कि कंज्यूमर को जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना ही वो प्राइस पे कर रहा है. So in this way, the consumer attained the equilibrium at this point because mu is equal to price. That means for the mu, the price which he is willing to pay equal to the price which he actually paid. Fourth unit पे consumer attained the equilibrium. Now he will not go for a fifth unit. Why? If you consume the fifth unit, his marginal utility it will decrease again. कितना हो गया 3. Satisfaction कितना है 3. यानी कि for 3 utility he is ready to pay 30. 30 rupees is willing to pay, लेकिन actually कितना पे करना है 50 rupees. प्राइस पर यूनिट कितनी है 50 rupees. तो अभी मेरे पास 30 rupees में देने को तैयार हूँ, लेकिन 50 rupees प्राइस है. क्या ट्रांजेक्शन होगा? Not possible. So consumer will not go for the fifth unit because at the fifth unit, price which the consumer is willing to pay is lesser than the satisfaction which he derives from the consumption of the commodity. Clear up to this? Okay, so in this way the consumer attained the equilibrium. Now if you are having any doubts, you can ask. You can raise your hand. I will unmute that person. जो भी हैंड रेज करेगा उसको मैं अनम्यूट करके यू कैन आस्क द डाउट. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन आंसर में किसी को डाउट है क्या? हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. फिल इन द ब्लैंक्स देखो. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मार्शल assume that marginal utility of money, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी? रिमेन कांस्टेंट. एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कैसे है? assume to be a cardinal. Okay, it is assumed to be a cardinal. Then mu of commodity. Point of satiety. Point of satiety किस? थर्ड क्वेश्चन देखो. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बिकम्स अ नेगेटिव. mu of many becomes a negative when tu क्या होगा? स्टार्ट फॉलिंग. पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन किसको कहते हैं? mu is 0 and tu is maximum. That is your C. When mu is falling, mu कभी जब भी फॉलिंग होता है, tu क्या होता है? tu is rising. जब भी mu डिक्रीज होता रहता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, tu is rising. तो अभी यहाँ पे टाइम यूटिलिटी किसको रहती है? ब्लड बैंक. प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट. सर्विस यूटिलिटी डॉक्टर. नॉलेज यूटिलिटी मोबाइल फोन. Then here you have to identify the concept.
अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया इंडिकेटिंग दैट, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा था टी और एम यू का रिलेशन, उस तरह से आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम में एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप लोग लेंगे टी यू एंड एम यू। वाई एक्सिस पे आपका टी यू और एम यू आएगा, एक्स एक्सिस पे आपके यूनिट्स आएंगे, यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस है। और जैसे हमने रिलेशन में देखा था, आपको ये 1 2 3 4 यहाँ पे प्लॉट करना है और उसके सामने टी यू और एम यू प्लॉट करना है। अभी फर्स्ट यूनिट पे देखो, फर्स्ट यूनिट पे टी यू और एम यू सेम था, तो एक ही पॉइंट आएगा। सेकंड यूनिट पे जब भी कंज्यूम किया, टी यू कितना है 11 है, तो जहाँ पे आपका 11 रहेगा वहाँ पे पॉइंट डालो सेकंड यूनिट तक। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, 5 हो गई। तो अगर ऐसे पॉइंट्स, हर एक पॉइंट अगर आप ज्वाइन करोगे, फोर्थ यूनिट पे 0 है तो यानी कि ये एक्स एक्सिस को टच करेगी। फिफ्थ यूनिट पे -1 हो गया, अभी -1 कहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यानी कि आपका एक्स एक्सिस के नीचे है। और टी यू ए पॉइंट पे आपका मैक्सिमम रहेगा। तो अभी जितने भी टी यू वाले पॉइंट है उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसे टी यू कर मिलेगा। शुरुआत में अपवर्ड रहेगा, देन कांस्टेंट, देन डिक्रीज। ये आपका टी यू कर्व हो जाएगा और ये आपका एम यू कर्व। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये कर्व ड्रॉ करना। देन उसके नीचे क्वेश्चन क्या है कि द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ करना है। सेकंड क्या है, व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, टी यू मैक्सिमम कितना है 15, एम यू क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, एम यू क्या हो गया 0 हो गया। व्हेन टी यू फॉल्स, अभी टी यू कभी फॉल होगा, देखो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, कहाँ पे डिक्रीज हुआ, जब भी एम यू निगेटिव हुआ। तो व्हेन एम यू इज निगेटिव, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शन। तो अब ये कैसे लिखने का, पहले क्या आएगा इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्या आएगा इंट्रोडक्शन आएगा। उसमें बताना है कि दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स टू एक्सप्लेन द लॉ। ये क्यों दिया उसने, टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद स्टेटमेंट, सेकंड पॉइंट क्या आएगा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, ओके। देन थर्ड पॉइंट आएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। आपको लॉ को एक्सप्लेन करना है विथ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो शेड्यूल जो दिया है, डायग्राम उसको एक्सप्लेन करना है। एंड यहाँ पे एजम्पशंस नहीं पूछे, तो ये भले एजम्पशंस नहीं पूछे, यू हैव टू राइट द एजम्पशंस, लेकिन वन सेंटेंस में उसको लिखना है। लेकिन व्हेनेवर बोर्ड में जब भी एजम्पशन अलग से पूछा है तो आपको एजम्पशंस डिटेल में एक्सप्लेन करना। यहाँ पे स्पेशली नहीं पूछा एजम्पशंस, तो आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट में एक को एक्सप्लेन करना, हर एक पॉइंट को एक एक लाइन में लिखनी है एंड एक्सेप्शन उसको डिटेल में लिखना है। तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो you will get 1 mark for statement, 1 mark for introduction, 1 mark for assumption, or 3 marks for exception, and 2 marks for diagram and explanation. Clear? तो इस तरह से आपको explain करना। If you are having any doubts, you can ask. Just raise your hand. So we are going to stop over here. मामा